Good morning everyone. My name is Nusrat Jahan. I am working as a physiotherapist in DIC since last 5 years. This DIC has been established in 2017 and now we have completed our Alhamdulillah 5 years in DIC. We came throughout the long period and I'll be discussing today as a physiotherapist my part domain, which is neurodevelopmental kinesiology. Kinesiology means basically it is related to something movement. Without movement, physiotherapy is nothing. It is kind of zero. So what is kinesiology, how it is related with physiotherapy, and how it is going to relate with the pediatrics and their development, this thing I'll be discussing in whole 10 minutes. These are the patients which are coming to my DIC and my physiotherapy chamber, where we work as a functional physiotherapist. It is a physiological, biomechanical, psychological and dynamic principle mechanism of movement. In pediatric population, movement pattern related with milestone achievement and its duration to obtain. So I am not working on my movements patterns, how the child is going to develop in typical and atypical manner. Everything is zero without movement. I will be firstly talking about the normal development. So if I am going to see a child who is any age, who could be 0 to 1 year, 1 to 3 years, 6 to 8 year, or kind of any age, the pattern is going to constant from every child. It is not going to be different. Another, the skill acquires sequentially. What it mean by, if a child has a pattern that the child should obtain neck control by 3 months or sitting should be achieved by 6 months, this is going to be constant. Yes, definitely some of the children going to obtain slighter easier and earlier, and maybe some children are later on, but this is not going to be major difference. Another is rate varies from child to child, as I said just right now, because every child is a different person. Maybe child is very fast and he is going to obtain his milestone very early, 1 or 2 months earlier, or maybe it going to be later on, 1 or 2 months later, but this is going to be the range, not more than that. Another is later goals depend on achieving earlier goals in same field. As like I said, there is a sequential manner. First you have to control the neck, then you will be sitting, then you will be crawling, and then you will be standing and running. It is not going to like this, you will be sitting and then going to run, and you will be skipping the crawling portion. It should be in a sequential manner. Genetic and environmental factors contribute positively and negatively. As I said, अगर the possible thing is different होता है हर बच्चे में. If my mother and my grandmother has or my father has been sitting earlier, definitely it is going to come in my portion also. Assessment always done in 4 areas. Firstly, the gross motor, secondly the fine motor, thirdly speech, language and hearing, and social emotional behavior. These are the subheadings which are shown in the figures. Sit supported, walk around the furniture, walk unaided. This is, you can go through. So now this here the physiotherapist part is coming. As I said, 3-month baby is going to start the movements of the leg, hands, start the controlling his neck. So first pictorial is going to show the alternate limbs moving. If the child is in a prone position, definitely he is going to see his rattles and lift the neck. Second picture, the third picture below is showing a 6-month-old baby who is lying ipsilaterally, मतलब वो अपने कंधे पे लेटा हुआ है and he is trying to reach things in a different manner. He can take weight bear to right or left, definitely, and this is called ipsilateral pattern of locomotion. फिर the last picture is contralateral. Here the child is coming on 9-month position. अगर बच्चा 9 महीने का हो गया है तो definitely वो crawl position कर सकता है. Crawl में when we start crawling, we use our contralateral limbs. माने अगर मैं अपना राइट हैंड आगे रख रही हूँ तो मुझे लेफ्ट हैंड को अपने पीछे रखना पड़ेगा, एंड दिस इज अ कॉन्ट्रालेटरल लोकोमोशन पैटर्न. So these are the live pictures I have taken from my OPD chamber. 0 to 3 month typical pattern.
तो अगर मुझे जानना है कि मेरे बच्चे में परेशानी क्या है, तो मुझे ये भी पता होना चाहिए कि बच्चे में एबनॉर्मलिटी और नॉर्मेलिटी क्या होती है। नॉर्मेलिटी जानने के लिए सबसे पहले इन बच्चों में कैसे हम लोग पैटर्न्स को अचीव कर सकते हैं। तो इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द 0 to 3 month एज, अगर बच्चा 3 महीने का है तो ये सारे टिपिकल डेवलपमेंट हैं, ये होने ही चाहिए। अगर इनसे इफ़ समथिंग इज़ गोइंग टू राइट और लेफ्ट, दिस इज़ एबनॉर्मल। The child is the first picture is showing the child is 3 month age, he is lying on his tummy, and if I am asking if I am giving any cues, मैं उसको बुला रही हूँ, उसका नाम पुकार रही हूँ, definitely he is going to lift his neck and see who is showing to me। तो गर्दन उठाना बहुत ही आम बात है, लेकिन 3 महीने में ये आ जाना चाहिए। अगर 3 से 4 महीने के बीच में ये नहीं आता है, देयर कुड बी अ एबनॉर्मेलिटी। सेकेंडली, मैं उसको विजुअल क्यूज़ दे रही हूँ, मैं उसको फिजिकल क्यूज़ दे रही हूँ। आई एम जस्ट गिविंग द टॉयज इन हिज हैंड एंड ही इज़ रीचिंग टू द टॉय। Third picture is able to move his fist from close to open. He is going to close his fist, open his fist very normally. फोर्थ इज़ एबल टू ब्रिंग हैंड्स टू द माउथ। आपने देखा होगा बच्चे बहुत ईजिली हर चीज़ को अपने मुंह में लेते हैं, विच इज़ नॉर्मल इन 0 to 3 month ऑफ एज। वाई? बिकॉज दे वॉन्ट टू एक्सप्लोर थिंग्स। हर चीज़ को वो जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं। दे हैव केम फ्रॉम वेरी अननोन थिंग। वो किसी चीज़ को नहीं जानते, हाउ दे विल बी स्टिमुलेट थिंग्स। तो वो हर चीज़ को अपने मुंह में डाल के देखते हैं कि ये चीज़ क्या है, इसको किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। तो दिस इज़ हाउ दे फील द थिंग्स। 4 to 6 month टिपिकल डेवलपमेंट क्या है? 4 to 6 मंथ में बच्चा स्लाइटली सपोर्ट से बैठना शुरू कर देगा, जैसा कि पहले पिक्चर में दिखाया गया है। तो चाइल्ड ट्रंक इज़ नॉट दैट मच गुड इनफ। वो इतना अच्छा नहीं है कि वो इरेक्ट पोजीशन में अपने कोर को संभाल सके, ट्रंक पोजीशन को संभाल सके। तो ही इज़ गोइंग टू लीन हिज बॉडी फॉरवर्ड पोजीशन। तो अपने हाथ को उसने आगे किया और अपने आप को थोड़ा सा सपोर्ट दे के बैठने की कोशिश कर रहा है। डेफिनेटली हर बच्चा एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, तो कोई 4 महीने में भी डेवलप हो जाती हैं किसी की चीज़ें, किसी में 6 और स्लाइटली मोर देन दैट 7 और 8 month कुड बी ऑल्सो नॉर्मल। इट विल नॉट से एबनॉर्मल थिंग। अगर 8 महीने में भी बच्चा बैठना शुरू कर रहा है तो इट इज़ नॉट एबनॉर्मल। एज आई सेड कि इसमें बहुत सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं। सेकेंड पिक्चर इज़ रोल फ्रॉम बैक टू टमी। हमारे सभी घरों में बच्चे होंगे और हमने ये सारे डेवलपमेंट एजेस देखे हैं, लेकिन हम लोग इसको बस नोटिस नहीं करते हैं। 4 से 6 महीने में, 7 महीने में बच्चे रोल करना शुरू कर देते हैं। तभी हमने देखा है कि हमारी माएँ जो हैं साइड में पिलोज लगा देती है, सो दैट द चाइल्ड इज़ नॉट गोइंग टू फॉल डाउन। तो दिस इज़ द नॉर्मल डेवलपमेंट। आखिरी जो है, वाइल लाइंग ऑन द बैक रीचेज बोथ हैंड टू प्ले विथ। हम लोगों ने काफ़ी देखा है कि बच्चे मुंह में उंगलियां डालते हैं, पैरों को भी उठा उठा के डालते हैं। तो दिस इज़ समथिंग वेरी नॉर्मल। इस वक्त वो हर चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं, और क्योंकि अब उनकी लिम्स मूवमेंट में इतनी फ्री एक्टिविटी होने लगी है, वो ये करना शुरू कर देते हैं। Another is 10 to 12 month typical development. The child is going to take his weight bearing on knees and hands. तो ये क्वाड्रापोड पोजीशन में आना शुरू कर देता है बच्चा, और इससे क्रॉलिंग शुरू हो जाती है। क्रॉलिंग के बाद द चाइल्ड इज़ गोइंग टू स्टेप हिज वन हैंड्स स्लाइटली फॉरवर्ड सो दैट ही कैन क्रॉल बेसिकली। तो एक हाथ आगे किया, फिर पैर आगे किया, somehow he is going to stand with support. तो these are the normal developments. Another picture is again for 10 to 12 month of motor milestone. बच्चा थोड़ा सा खड़े होने की कोशिश करेगा, कुछ बच्चे उसमें खड़े भी हो जाएंगे। तो दिस इज़ मोटर डेवलपमेंट विच इज़ टिपिकल डेवलपमेंट। अब इसके बाद जब हम लोगों ने टिपिकल डेवलपमेंट की बात कर ली है, तो हमें रेड फ्लैग्स जानने होंगे। रेड फ्लैग्स का क्या मतलब होता है कि किस तरीके से मैं पहचानूं कि मेरे बच्चे में परेशानी है। तो दीज आर द रेड फ्लैग्स। एनी ऑफ दिस विल बी देयर इन माई चाइल्ड, आई विल बी रेड अलर्ट एंड आई गो टू विजिट अ डॉक्टर कि मेरे बच्चे में परेशानी है। क्या होगा? लॉस ऑफ स्किल एट एनी एज। कुछ चीज़ें बच्चे ने सीख ली हैं और उसके बावजूद उस बच्चे ने वो चीज़ रिग्रेशन हो गया। मेरे बच्चे ने बैठना शुरू कर दिया था मैडम, लेकिन कुछ दिनों से वो बैठ नहीं रहा है, तो देयर मस्ट बी अ प्रॉब्लम। क्यों बैठना बंद कर दिया? वो तो सीख गया था। नॉट फिक्सिंग और फॉलोइंग एन ऑब्जेक्ट। इफ़ आई एम शोइंग एनी थिंग टू माई चाइल्ड कि यहाँ से यहाँ जाना है, तो ही शुड मूव हिज आइज़, एटलीस्ट नॉट नेक, तो मूव करना चाहिए आइज़ को। तो ये फिक्सिंग और फॉलोइंग कहलाता है। हियरिंग लॉस क्या है? बच्चे को हम लोग बार बार रेटल्स सुनाते हैं,
वो बजने वाले खिलौने दिखाते हैं और उसके बाद भी उसका ना चौंकना, उसकी तरफ फॉलो ना करना, हियरिंग लॉस। लो मसल टोन, लो मसल टोन का मतलब होता है जब भी माँ बच्चे को अपनी गोद में उठाती है उसको एक बच्चे में जान दिखाई देती है, उसके हाथ पैर हल्के से टाइट होते हैं, लेकिन अगर वो टोन नहीं है बच्चा तो बच्चा या तो बहुत ज़्यादा अकड़ा हुआ मालूम होगा, जिसको हम हाइपोटोनिया बोलते हैं कि मेरा बच्चा बहुत अकड़ा हुआ होता है, ऐठा हुआ होता है, और अगर लो टोन है तो बहुत लचीला होता है। पेरेंट्स कहते हैं कि मैं जब भी अपने बच्चे को उठाती हूँ मेरे बच्चे में जान नज़र नहीं आती, हड्डियाँ एकदम हिली डुली सी नज़र आती हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड फ्लॉपी और लो टोन। अनदर इज़ बच्चे 1.5 साल में कुछ ना कुछ तो बोलना शुरू कर देते हैं, अगर वो स्पीच नहीं आती है तो दिस इज़ अ रेड फ्लैग। टो वॉकिंग, शुरू में 1 से 1.5 साल बच्चों का पंजों पे चलना इज़ नॉर्मल, बट अगर उसके बाद भी बच्चा पूरा पैर नहीं जमा रहा है तो देयर मस्ट बी अ प्रॉब्लम। कांट सिट अनसपोर्टेड बाय 12 मंथ, बच्चा 12 महीने के बाद भी नहीं बैठ पा रहा, डेफिनेटली एक प्रॉब्लम है। 18 महीने पे वॉक नहीं कर रहा है, ऑब्जेक्ट्स को पकड़ नहीं रहा है 5 महीने पे, तो दीज आर द प्रॉब्लम्स वी कैन से एज अ रेड फ्लैग। सो जिन चीज़ों की मैंने बात की वो थोड़ा सा पिक्टोरियल मैनर में हम समझने की कोशिश करते हैं। 3 मंथ ऑफ एज में आई सेड कि देयर इज़ अ नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ नेक कंट्रोल, नेक की पोस्टीरियर मसल्स में अच्छा टोन डेवलप हो जाता है। तो अगर मेरा बच्चा 2-3 महीने 3.5 महीने का है और उसको टमी टाइम देने के बाद भी वो गर्दन नहीं उठा रहा है तो दिस इज़ अ रेड फ्लैग, आई नीड टू विजिट माई डॉक्टर। अगर मैं उसको सुपाइन पोजीशन में मतलब ऑन बैक लेटाती हूँ और फिर उसके बाद वो अकड़ता है, नहीं, ये गलत है, क्योंकि बच्चों को जब सीधा लेटाया जाता है तो वो अपने हाथ पैर मारते हैं, अपने हाथ को मुंह में लेकर आते हैं, अपने पैरों को मुंह तक खींचने की कोशिश करते हैं, मूवमेंट्स करते हैं। तो अगर वो चीज़ नहीं है तो ऐसा पोजीशन मतलब हाइपरटोनिया, बच्चा अकड़ रहा है। 6 महीने पे बच्चे का ना बैठ पाना और पूरा का पूरा गिर जाना, इसका मतलब बैक की मसल्स उसका सपोर्ट नहीं कर रही हैं। या फिर उन बच्चों में उठाने के बाद भी ना उठना, मतलब उसकी कमर अकड़ी हुई है, वो मांसपेशियाँ उसका साथ नहीं दे रही हैं। खड़ा करने में जो लास्ट पिक्चर है सीजरिंग हो रही है, सीजरिंग का मतलब होता है दिस, इफ़ माई एडक्टर मसल्स आर टाइट इनफ, अगर मेरी जांघों की मसल बहुत ज़्यादा अकड़ी हुई हैं तो इसका मतलब होता है कि बच्चा सीधा पैर करने की जगह पे वो क्रॉस कर लेगा। क्रॉस का मतलब होता है कि वो चिपका लेगा और माँ कहेगी कि मेरे बच्चा कैच ही मारता है, तो इसको सीजरिंग कहते हैं। 9 महीने में भी बच्चे को इस तरीके से स्लाउच पोजीशन में बैठना गलत है, क्योंकि अब उसका इरेक्ट पोजीशन डेवलप हो जाना चाहिए। इसी तरीके से 12 महीने में भी बच्चा अगर खड़ा नहीं हो रहा है, 15 महीने में बच्चा चल नहीं रहा है, तो ये सारे एटिपिकल डेवलपमेंट हैं। So these are some pictorials you can see. See this picture is absolutely रेड फ्लैग। ऐसा बच्चा नहीं होता है, बच्चे अपने आप को तिरछी तरीके से पीठ अकड़ाते नहीं हैं, इस तरीके से लास्ट पिक्चर हाथ नहीं अकड़ाते हैं। दिस इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ हाइपरटोनिया। अगर ऐसा बच्चा है तो डेफिनेटली उसमें प्रॉब्लम है, बच्चा अकड़ा हुआ है, बच्चे में ऐंठन आई हुई है, और इसके लिए हमें डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। न्यूरोमोटर एग्जामिनेशन में हम लोग, अब डॉक्टर्स के पास आप जाएंगे तो वो लोग क्या आपका एग्जामिनेशन करते हैं, ये उसका थोड़ा सा ब्रीफ है। क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन, आँखों का एग्जामिनेशन होता है। ओरोमोटर एग्जामिनेशन, मेरे मुंह में किस तरीके से मैं टंग को मूवमेंट लेती हूँ, ये एग्जामिनेशन होता है। गेट का मतलब होता है चलने का तरीका, क्या बच्चा अगर 1 साल से ऊपर का हो गया तो चल पाता है या नहीं, क्या वो सीजरिंग तो नहीं करता, क्या वो लिम्पिंग तो नहीं करता, क्या वो सिर्फ एक पाँव पे तो नहीं चलता, तो ये सारे गेट हैं। मूवमेंट जो होती है वो रिदमिक होनी चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ एक हाथ चल रहा है, सिर्फ एक पैर चल रहा है। मसल बल्क, क्या हमारे हाथ बाइलेटरल, इसको हम बाइलेटरल देखते हैं। अगर मेरे राइट हैंड में जो एक बल्क है, जो एक गर्थ है, वो लेफ्ट में भी होना चाहिए। इट शुडंट बी लाइक एसिमेट्रिकल कि इसमें कम है इसमें ज़्यादा है, तो ये परेशानी की बात है। टोन असेसमेंट, टोन आई सेड, टोन इज़ अ क्रूशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फिजियोथेरेपी। टोन एक फिजियोथेरेपिस्ट जो है इसलिए भी असेस करता है क्योंकि इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मूवमेंट में। अगर मेरी बॉडी में टोन नहीं होगा तो मैं मूवमेंट नहीं कर पाऊंगी, और इसीलिए बच्चों में परेशानी आ जाता है। तो ये डिफरेंट तरीके होते हैं हमारे DIC में एज अ फिजियोथेरेपिस्ट।
मैं उसको अप्रोच करती हूँ। इन्फेंट में जो बिल्कुल 0 ईयर्स के बच्चे होते हैं उनमें किस तरीके से देखा जाता है, तो पोस्चरल टोन देखती हूँ। ओल्डर्स में मैं सिटिंग करके स्टैंडिंग करा के देखती हूँ। एक्सट्रीमिटी टोन को हम स्कार्फ साइन से देखते हैं और पोस्चर से देखते हैं। ट्रंकल टोन को हम लोग कुछ ऑब्वियस से जैसे ऑफिस्टोटोनस पोस्चर, ऑफिस्टोटोनस पोस्चर ये होता है कि अगर एक बच्चे को हम उसके टमी पे लेटाएं तो सिर्फ उसका हेड और टोज टच कर रहा है, मतलब धनुष की तरह अगर बच्चा लेटा हुआ है तो इसको ऑफिस्टोटोनस पोस्चर बोलते हैं, विच इज़ वेरी बैड एंड बच्चे को हाइपरटोनिया होगा। फिर लिम्स में हम मूवमेंट्स देखते हैं। एमाइल टाइसन इज़ अ काइंड ऑफ अनदर असेसमेंट जो हम NICU के बच्चों में करते हैं। पैसिव मूवमेंट्स करा के हम चेक करते हैं कि बच्चे में टोन कैसा है। ये एक नॉर्मल उसका पिक्टोरियल है एंड इफ़ यू वांट टू स्टडी इन मोर डिटेल वी कैन डिस्कस इन आवर पर्टिकुलर चैम्बर्स। ये प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस देखे जाते हैं, ट्रेमर्स देखते हैं, DTRs देखे जाते हैं, सेंसरी डेफिसिट और डिस्प्रेजिया। डिस्प्रेजिया क्या होता है? इनएबिलिटी टू फॉर्मुलेट, प्लान, एग्जीक्यूट कॉम्प्लेक्स मूवमेंट। इसी को चेक करने के लिए इफ़ माई चाइल्ड इज़ 2 years एज हम लोग उस बच्चे को ब्लॉक्स देते हैं कि क्या वो ब्लॉक्स बना पा रहा है कि नहीं, क्या वो समझ पा रहा है कि इस ब्लॉक्स को इसमें लगाने से एक पैटर्न डेवलप हो सकता है। तो दिस इज़ कॉल्ड डिस्प्रेजिया। कोऑर्डिनेशन कैसे हम देखते हैं, मसल बल्क कैसे देखा जाता है। पावर बच्चों में जो है वो थोड़ा सा टफ हो जाता है एक फिजियोथेरेपिस्ट के लिए चेक करना, क्योंकि चिल्ड्रन 0 to 1 year child will not show any kind of power definitely because MMT is a kind of thing which is going to give the resistance इस तरीके से बच्चे नहीं देते हैं। इफ़ आई एम आस्किंग माई एडल्ट कि भाई यहाँ पे आप रेजिस्टेंस लगाइए तो वो ईजी हो जाता है, लेकिन बच्चों में थोड़ा सा ये टफ होता है। तो इसके लिए डिफरेंट तरीके होते हैं जो कि एक फिजियोथेरेपिस्ट फॉलो करती है। So this is it. I'll go for the neurological development and the assessment of the child or normal or typical, atypical assessment. If something rest, you can ask anytime.